Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranama Tatulyam Ramanamam Varanani Om Apadamapahartaram Dataram sarvasampadam Lokabiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Namaskar. Today we read chapter 40, which has 30 verses in it. In this chapter, after the gods have reached Brahma and pleaded with him about Sagara's sons who are destroying the earth, Brahma reassures the gods by telling them that the sons of Sagara will be destroyed by the curse of Sage Kapila. The sons of Sagara, in the course of the excavation, arrive in the presence of Kapila and, behaving insolently towards him, are forthwith reduced to ashes by the fire of his wrath. आज हम बालकांड के 44 सर्ग अर्थात 40वें सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें सगर पुत्रों के भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करने के बारे में और सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचने के बारे में और उनके रोष से जलकर भस्म होने का विवरण दिया गया है। इसमें 30 श्लोक हैं। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान वै पितामह प्रत्युवाच सुसंत्र स्थान कृतांत बल मोहितान। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। Hearing the representation of the gods, the venerable Brahma replied as follows to the gods, who were greatly alarmed and had been thrown into confusion by the might of the sons of Sagara, who had brought about destruction of living beings on a large scale. यस्येयं वसुधा कृतस्त्रा वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवस्य यैषा स एव भगवान प्रभुः कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धरां तस्य कोपाग्निघ्ना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजाः। देवगण, यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की यह रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से ये सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। The goddess Earth is a consort of the all-wise Lord Vishnu, the spouse of Lakshmi, the goddess of fortune, to whom the entire globe belongs. Assuming the form of Kapila, the same Almighty Lord incessantly supports the earth by dint of his yogic power. The sons of Sagara will be shortly consumed by the fire of Kapila's wrath. पृथ्वीयाश्चापि निर्भेदो दृष्ट एव सनातनः सगरस्य च पुत्राणाम विनाशो दीर्घदर्शिनाम। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सगर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सगर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा भी है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। The excavation of the earth invariably takes place in every kalpa, and the destructions of the sons of Sagara too is foreseen by men possessing a long range of vision. Hence, there is no occasion for grief on this account either. पितामह वचः
श्रुत्वा त्रयसित्रंश दरन्दिमाः देवाः परम संहृष्टाः पुनर्जगमुर यथागतम। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। Hearing the reply of Brahma, the progenitor of the entire creation, the gods, 33 in number, all capable of subduing their enemies, returned extremely delighted to their respective abode the way they had come. The 33 principal gods are the 8 Vasus, the 11 Rudras, the 12 Adityas, and the 2 Ashwini Kumaras, the twice born physicians of the gods. सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन महास्वनः पृथिव्यां विद्यमानायां निर्घात सम्मनि स्वनः। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। And while the earth was being excavated at the hands of the Sagara sons, there arose a terrific sound like that of a thunderstorm. ततो भित्तवा महीम सर्वां कृत्वा चापि प्रदक्षिणं सहिताः सागराः सर्वे पित्रम वाक्यम ब्रुवन्। इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके भी वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, Having walked round the whole earth and excavated it too, all the sons of Sagara then sought the presence of their father and jointly made the following submission to him. परिक्रांता मही सर्वा सत्ववन्तश्च सूदिताः देवदानवर क्षांसी पिशाचोर पन्नगाः न च पश्यामहेश्वरं ते अश्वहर्तारमेव च किम करिष्याम भद्रम ते बुद्धिरत्र विचार्यताम। पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें ना तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और ना घोड़े का चुराने वाला ही। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। The entire globe has been circumambulated and excavated, and powerful gods and demons and ogres and fiends and serpents and nagas have been destroyed by us. Yet we have neither been able to trace the horse nor the stealer of the horse. What shall we do now? May your benign look descend upon us, and let a further plan of action be thought out for us in this matter. तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः समन्युर्ब्रवीद वाक्यम सगरो रघुनंदन। रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, Hearing the aforesaid submission of those princes, O Scion of Raghuvamsha, Sagara, the noblest of kings, angrily replied as follows. भूयः खनत भद्रम वो विभेद्य वसुधातलम अश्वहर्तार मासाद्य कृतार्थाश्च निवर्तत। जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और इसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौट। May prosperity attend you. Excavate the earth further, and breaking it open, trace the stealer of the horse and return only when you have accomplished your purpose. पितुर्वचन मासाद्य सगरस्य महात्मनः षष्ठिः पुत्र सहस्त्राणि रसातलम विद्रवन। अपने महात्मा पिता सगर की यह आज्ञा शिरोधार्य करके वे 60,000 राजकुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी खोदने लगे। Bowing to the command of their high-souled father, Sagara, the 60,000 princes dug their way into Rasatala. खन्यमाने ततस्तस्मिन् ददृशु पर्वतोपमं दिशा गजं विरूपाक्षं धारयन्तं
महीतलम। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। Even while the girth was being further tunneled, they saw as a sequel to that excavation an elephant huge as a mountain by the name of Virupaksha guarding the eastern quarter and supporting the globe. सपर्वत वनाम कृतस्त्राम पृथ्वीम रघुनंदन धार्यामास शिरसा विरूपाक्षो महागजः। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। The great elephant Virupaksha supported on his head the entire globe, including the mountains and the forest, ocean of the Raghuvamsha. यदा पर्वणि काकुतस्थ विश्रमार्थम महागजः खेदाच्चालयते शीर्षम भूमि कंपस्तदा भवेत्। काकुतस्थ वह महान दिग्गज जिस समय थक कर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था उस समय भूकंप होने लगता था। Whenever from exhaustion the great elephant shakes his head for the sake of relief, a convulsion of the earth's surface ensures, ocean of the Kukusta. ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते राम जगमुर्भित्वा रसातलम। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। Walking clockwise round that great elephant, guarding the eastern quarter of the earth, and thereby showing their respect to him, O Rama, they tunneled their way through Rasatala indeed. ततः पूर्वाम दिशं भित्वा दक्षिणाम बिबिधु पुनः दक्षिणसयामपि दिशि दिदृशोस्ते महागजम। पूर्व दिशा का भेदन करने के पश्चात वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि को खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। महापद्यम महात्मानम सुमहत पर्वतोपमम शिरसा धारयंतम गाम विस्मयम जगमु रुत्तमम। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशाल काय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। Having pierced the earthen quarter, they then penetrated the southern quarter too, and in the southern quarter again they found the great elephant Mahapadma, endowed with a colossal body resembling a huge mountain and supporting the earth on his head, and they experienced great wonder. ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः षष्टिः पुत्रसहस्राणि पश्चिमां बिबुध दुर्दिशम। महात्मा सगर के वे 60,000 पुत्र उस दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि का भेदन करने लगे। Walking round the elephant from the left to the right as a mark of respect, the 60,000 sons of the high-souled Sagara penetrated the western quarter. पश्चिमायामपि दिशि महान्तं चलोपमं दिशा गजं सौमनसं दुदृशोस्ते महाबलाः। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सोमनस का दर्शन किया। In the western quarter too, those very mighty princes beheld the great elephant guarding that quarter called Somanasa, that resembled a mountain in size. ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा पृष्ठवा चापि निरामयं खनन्तः समुपक्रान्ता दिशं सोमवतीम तदा। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुंचे। Walking round the elephant clockwise and inquiring after his welfare,
They then dug their way into the northern quarter, presided over by the moon god. उत्तर श्याम रघुश्रेष्ठ ददृशिर हिम पांडुरम भद्रम भद्रेण वपुषा धारयंतम महीन मिमाम। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। In the north, O chief of the Raghus, they saw Bhadra, the elephant guarding that quarter, white as snow, supporting this globe on his beautiful body. समालभ्य ततः सर्वे कृत्वा चैनम प्रदक्षिणम षष्टिः पुत्र सहस्त्राणि विभु दुर्वसुधातलम। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। Touching the elephant and walking round him from left to right, all the 60,000 princes set about digging the earth once more. ततः प्रागुत्तराम गत्वा सागराः प्रथिताम दिशम रोषादभ्य खनन सर्वे पृथ्वीं सगरात्मजाः। तदंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना आरंभ किया। Proceeding in the celebrated northeasterly direction, presided over by Lord Shiva, and as such held sacred for all holy undertakings, all the sons of Sagara continued digging the earth in an agitated mood. ते तु सर्वे महात्मानो भीम वेगा महाबलाः ददृशुः कपिलम तत्र वासुदेवम सनातनम। इस बार उन सभी महामना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहां सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा। हयम च तस्य देवस्य चरंतम विदूरतः प्रहर्षमतुलम प्राप्ताः सर्वे ते रघुनंदन। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चर रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। All those high-minded and exceedingly mighty princes, possessed of tremendous speed, actually beheld there the eternal Lord Vishnu manifested in the form of Sage Kapila, as well as a horse grazing not very far from that glorious sage, on which they all experienced incomparable joy. Ocean of Raghuvamsha. ते तं यज्ञहनं ज्ञात्वा क्रोधपर्याकुलेक्षणाः खनित्रलांगलधरा नानावृक्षशिलाधराः। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने अपने हाथों में खंती, हल और नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। अभ्यधावंत संक्रुद्धा तिष्ठेति चाब्रुवन अस्माकं त्वं हि तुरंगम यज्ञियं हृतवानसि दुर्मेधस्त्वं हि संप्राप्तान विद्धि न सगरात्मजान। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ के घोड़ों को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए, तू समझ ले, हम महाराज सगर के पुत्र हैं। Thoughtlessly, suspecting him to be the man who had interrupted the sacrifice performance by stealing away the sacrificial horse, they felt enraged and rushed towards him with their eyes bedimmed through anger, carrying spades and plows and various kinds of trees and rocks, and said to him, Stop, stop, you alone have stolen our sacrificial horse. श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनंदन रोषेण महताविष्टो हुंकार मकरोत तदा। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। ततस्ते न प्रमेयेण
कपिलेन महात्मना भस्म राशि कृताः सर्वे काकुतस्थ सगरात्मजाः। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर राख का ढेर कर दिया। Indeed, you know us to be the sons of Sagara, arrived in a body, O evil-minded one, seized with fury to hear the threat of theirs, O Rama. Kapila forthwith uttered that sound of hum, expressive of contempt. The very next moment, the sons of Sagara were all burnt and reduced to a heap of ashes by the high-souled sage Kapila of immeasurable glory. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे चत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 40 in the Balakandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane Om Apadamapahartaram दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। धन्यवाद। धन्यवाद।